and itself, another economist has written, the wisest course now possible for India is to return to the good silver standard, which should have never been departed from. So this was a very, very important observation. And so silver was very close to us, and we were very well known for different applications of silver. Next slide, please. Right. So now, one thing I must tell, that the most illustrious reputation of silver is in terms of jewelry, silverware. However, the primary industrial use of silver is in industrial applications. Whether it is cell phones or solar cells, there are new innovations that are emerging in the direction of silver. And I'm also quoting one report from Globe Newswire, which mentions about world silver supply and demand. This is very recent, April 22, 2020. Many of the people in the audience may be aware of this. And it clearly mentions that global silver demand was pushed higher in 2019. Please go back once. The global silver demand was pushed higher in 2019 with 12% increase in investment demand as retail, and institutional investors focused their attention on long-term investment appeal of the white metal. So this is a very important report, which is very recent. So this makes sense even in current times. So as I said, the most important applications are in jewelry and silverware. However, engineering applications, they include electrical, electronic, and optical devices, coating, and biological healthcare applications. The next slide, please. Right, so here I have shown some of the applications of silver, traditional applications. And the most important thing is there are a couple of applications from India. This is very famous Gangajali of Rajasthan, which is shown here. This is one of the largest silver structure that has been found in terms of silverware. So this is definitely a matter of proud for being a part of the silver tradition. Right? Recent times, as I said, I'm showing the data for the United States. In addition to coins and medals and other jewelry and silverware, this now in a developed economy like United States, it consists of only 6%. Major part of silver is used in electrical and electronics, that is about 35%. 24% is other applications. 25% is coins and medals, photography, and there are several other applications. So I think this is the time to move into different applications. Okay. Let's look through some applications quickly. Hello. Hello. Yeah. Please move to the next slide. So there are I am showing some technological applications of silver. So there, the most important technical application is, which is a larger application, is brazing and soldering that ensures tight joint between metal pipes. Silver coated bearing reduce friction in engines. Silver wires can be woven into a metal mesh, and that can be used as a catalyst, and for many other applications these can be used. Please move to the next slide. Now here comes the crux of the application. So there are, with the increase in demand of solar cells, silver finds a new avenue for its large scale and widespread applications. So here the contact and lines can be made of silver, and when solar radiation falls on a semiconductor, photoelectric effect takes place, and the current is carried by the silver connections. So this is shown in the central figure here, central photographs. And then there is another photograph here that shows about printed electronics. So these are all silver niche applications of silver. There is another application which is a little expensive and probably not so affordable, that people paint their windows with silver coatings where light is reflected, but it has been turned out that it saves a lot of electricity against the usage of air conditioners. So one can reduce a cost on electricity
by reduced use of air conditioner by using silver coatings on the windows. Next. Medicine finds a very, very large usage of silver because silver has a very special antibacterial qualities. It is used in ointments. These ointments protect wound against infection, and also silver is used for water filtration system. I will show you some examples of this. Next slide. So just one slide before, please. So with this, we also have some activities in silver. Ours is a metallurgy department, and these are the research work done in our laboratory. Silver is a very good metal, but very soft. So if we have a glass of silver and we hit on the floor, it gets a dent. Similarly, silver jewelry is found to be more deformable and more prone to wear. So, and then the other solution that is thought is by alloying, or alloying makes it impure. So we found a way to carry out severe plastic deformation where a silver structure is put. Here in the slide, you can see in the figure on the left side, where we put a silver structure, maybe a ring or a cup or a cylinder, and we clamp it from other side. There is hydrostatic pressure from other side, put a piston and turn it. So we twist it, and that makes silver very, very strong. So you, without contaminating it with alloying addition, you can make a high purity, strong silver thing. Here are some results which I don't need, I need to explain it, but one important thing that we can see in the bottom graph here, that the hardness of silver almost becomes 2.5 times by this process. So that makes silver strong and wear resistant. This was an application that we envisaged when I was working in France and started my first work on silver, and it was a lot of jewelry industries have shown interest in this, because in France people use, instead of Indian ornaments, they use bands in terms of the plain bands. So we were asked to make pure silver bands which are much stronger. So we did this work. And so this can, and we can also make composites. If you have highly pure silver and highly impure silver, we can just put one structure in the other and twist it, it gets automatically welded, or we can make a structure, composite structure of silver with any other thing. Next slide, please. Now, the current times, silver, we have reinvented the use of silver by additive manufacturing, where there is a powder of silver, powder bed of silver, and we can make a design of any engineering component. This has revolutionized the industry, jewelry to engineering to all kinds of applications. And we can just make a powder, because silver is the most suitable material to make powder. So with the powder, we can make a bed, we can print the structure, and we can design a structure in that and make an engineering product of our desired choice. So these are some of the results that we did in our laboratory. Next slide, please. These are some of the results, and we have shown that by making this, because there has been always a question whether we are able to make a similar or better product as it is done conventionally. So by some of these wave graphs show that we are able to get a better properties in silver by this additive manufacturing technique or 3D printing technique. The next one. Right. So here, there is another application of silver in one of the laboratories of Indian Institute of Science, where zinc coating was, with the addition of silver nanoparticles, was made to improve to show higher corrosion resistance. Next one. Here, silver was used for water filtration, and in this case, there is a polymer base, RGO, and then there was a silver, the white ones, the small ones, the white dots are silver. And then the moment the bacteria reaches there, due to some electrochemical action, bacteria dies, and one side contaminated water enters, and other side we get purified water. So this is a very important application, and some of these technologies are commercialized with some companies in Bangalore here. Next.
Again, the similar application in a different form. We can see here what happens. Yeah, the most other aspects are design related and polymer related, but two of the bottom pictures on both the sides are worth attention. That once it passes through E. coli bacteria, once it passes through silver, it completely dies, completely dead. So we could capture the dead bacteria after passing through silver containing polymer membrane. The next one. So in this short time, I was able to show that there are new opportunities in silver, new methods of bulk farming, where we can make silverware, silver components by severe plastic deformation, make them stronger yet pure. We can produce silver powder. This is very important, and I can tell that in next few years, this is going to have a prime importance because 3D printing is taking over. So we need lots of powders. So silver powder, and silver is incidentally very good for making powders. Silver powders are very absolutely made in a finest manner. And this 3D printing technology also reduces the wastage of silver. So this is one aspect that the technology should be driving. And then silver coatings. So coatings can be used, but now these days there are several newer methods of coating, and silver is again a material that can be coated very nicely. Printed electronics, this we have done by ourselves in our lab, but since this is under discussion with licensing with some companies, so I couldn't divulge these applications. So the printed electronics is one very, very major application. And of course, medicine or anything related to medical field, filtration, which healthcare related issues that can be taken care with silver. Thank you very much. My last slide. Thank you very much. This is my institute. Those who have not visited, please visit once. We can talk about silver and we can also show you our beautiful institute. Professor Satyam, बहुत धन्यवाद. Ladies and gentlemen, what a beautiful presentation that was. आज हमें पता लगा कि सिल्वर का भारत के इतिहास में, अर्थव्यवस्था में और आगे जो इनोवेशंस होने वाले हैं उसमें कितना प्रमुख योगदान है. वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सत्यम का. लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी उपस्थित साथियों, एक बार फिर आप सबको मेरा नमस्कार. आज के इस वेबिनार में वो लम्हा आ गया है जिसका हम सभी को था इंतजार. वंस अगेन स्वागत करते हुए आज के इस वेबिनार श्रृंखला में, जो कि एक बहुत प्रमुख विषय पर है, सिल्वर, द कल्चरल प्राइड ऑफ इंडिया, लीडिंग वे फॉर अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज. ये कार्यक्रम वेदांता लिमिटेड and Hindustan Zinc Limited in partnership with Silver Institute and Fortel Business Solutions Private Limited द्वारा supported by Indian Bullion and Jewelers Association, Indian Drug Manufacturers Association द्वारा आयोजित है. एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही ज्यादा गौरव व सम्मान की बात है कि जननायक आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं सर को पूरी टीम की ओर से नमस्कार प्रस्तुत करती हूं. वी ऑल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ श्री अमिताभ कांत जी, सीईओ नीति आयोग. वी आर डिलाइटेड टू हैव द प्रेजेंस ऑफ आदरणीय श्री Anil Agarwal ji, Chairman Vedanta Group. We are delighted to have the presence of Shri Sunil Duggal ji, CEO Vedanta Group. Adarniya Shri Arun Misra ji, CEO Hindustan Zinc Limited. Saurabh Swayam ji, Ruchika Jha Madam, CEO Silver Institute. Harsh Shetty ji, CMO Hindustan Zinc Limited. And Michael Derenzo sir, Executive Director Silver Institute. एक बार फिर आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत, नमस्कार. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय श्री सुनील दुग्गल जी, सीईओ वेदांता लिमिटेड, कि वो आज के कार्यक्रम में स्वागत प्रस्ताव हेतु कुछ शब्द प्रस्तुत करें.
आदरणीय सुनील दुग्गल जी, जिनका इंडस्ट्री में काफी व्यापक एक्सपीरियंस है सीमेंट व नेचुरल रिसोर्सेस को देखते हुए। आप अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन माइनिंग इंडस्ट्रीज, चेयरमैन CII माइनिंग कमेटी। इन्हीं शब्दों के साथ रिक्वेस्टिंग आदरणीय सुनील दुग्गल जी के स्वागत प्रस्ताव हेतु वो कुछ शब्द प्रस्तुत करें। सुनील जी प्लीज। थैंक यू। नमस्कार सबको। आज के वेबिनार के मुख्य मेहमान आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, अमिताभ कांत जी, CEO नीति आयोग, मिस्टर माइकल सिल्वर इंस्टीट्यूट से पधारे हुए, हमारे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब, मेरे साथी अरुण जी, देवियों सज्जनों और मेरे हिंदुस्तान जिंक के कलीग्स, आप सबका मैं आज इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वेबिनार को हम बहुत देर से सोच रहे थे कि आयोजित करें। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान का जितना भी सिल्वर बनता है ये सारा प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में होता है। हिंदुस्तान में तकरीबन 7,000 टन सीमेंट की इसकी सिल्वर की खपत होती है। इस 7,000 टन में से हिंदुस्तान जिंक 700 टन सिल्वर बनाता है। जैसा कि जाना जाता है कि राजस्थान में सिल्वर के बहुत अच्छे रिसोर्स हैं और इस राज्य में पोटेंशियल है कि उत्पादन को दोगुना तिगुना किया जा सके। अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएट करने की। हिंदुस्तान में जैसा कि मैंने कहा 7,000 टन के करीब सिल्वर यूज होता है। इसमें से तकरीबन 80% सिल्वर हमारा ज्वेलरी में या सिल्वर वेयर में यूज होता है और 20% के करीब सिल्वर हमारा टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रियल यूज में यूज किया जाता है। अगर पिछले 10 साल का हमारा डाटा देखा जाए तो हमारी सिल्वर वेयर की और ज्वेलरी की कंजम्पशन 2 गुना हुई है पिछले 10 साल में, परंतु इंडस्ट्रियल यूज में इसका यूज नहीं बढ़ा। और अगर ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो सिल्वर का यूज पिछले 10 साल में तकरीबन दुगना हुआ है। हमारे कंट्री में सिल्वर का यूज इंडस्ट्रियल यूज छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स में दुगना हुआ है। आगे जाके इन सब का पोटेंशियल हमारे कंट्री में देखा जाए और हमारे राजस्थान में देखा जाए। हमारे राजस्थान में आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये जो स्किल है ये राजस्थान के कारीगरों के खून में है। हम बहुत सारी ज्वेलरी, सिल्वर वेयर राजस्थान में मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। परंतु अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो एक बहुत ही मॉडर्न ज्वेलरी और सिल्वर वेयर की टेक्नोलॉजी भी आई है जिससे कि हमारी क्वालिटी, हमारी लुक, हमारा यूजेज और इसका कॉम्बिनेशन जेम्स के साथ, स्टोन्स के साथ कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक हमारे आर्टिजन्स को मॉडर्नाइज ट्रेनिंग दी जाए और उनको टेक्नोलॉजी लाके एक रीट्रेन किया जाए ताकि ये जो सिल्वर वेयर और ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग है ये एक वर्ल्ड का हब बन सके।
तो अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम हजारों जॉब राजस्थान में क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्रियल यूज में कहा कि हमारा सिल्वर यूजेज पिछले 10 साल में नहीं बढ़ा और वर्ल्ड का सिल्वर यूजेज इस पीरियड में डबल हो गया है। इसका मायना यह है कि हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियल यूजेज है केवल एक असेंबली के तौर पे किया जाता है। बहुत सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं और हम यहाँ असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम काम करें, टेक्नोलॉजी को यहाँ लेके आए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, तो हमारे लिए भी पोटेंशियल है कि हमारा आगे कुछ साल में इसका यूजेज डबल, ट्रिपल या 4 गुना हो सके। और जैसे कि पता है कि राजस्थान में सोलर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप सबको पता है कि सोलर पावर में सिल्वर का यूजेज भी आजकल बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा है। आज के वेबिनार में तकरीबन 10 कंट्री से बहुत बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले सेशन में ये बताया जा रहा था कि सिल्वर का यूजेज कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटी है। अगले कुछ घंटों में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा और अपॉर्चुनिटी फाइंड की जाएगी कि हम आगे आने वाले समय में अपने प्रदेश में क्या करें और कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। आज के वेबिनार में आने के लिए एक बार फिर मैं तहे दिल से गहलोत साहब का, अमिताभ कांत साहब का, अग्रवाल साहब का और बाकी जितने भी मेहमान आज पधारे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आज का वेबिनार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा कि हम कैसे जॉब क्रिएट कर सके, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सके और अपने लोगों के लिए क्या स्किल के और टेक्नोलॉजी के क्या प्लेटफॉर्म खड़े कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जी आपका। आपने एक बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि भारत में सिल्वर का, चांदी का लेकर कितना बड़ा व्यापार हो सकता है, कितना बड़ा क्षेत्र है। और जब आज हम देख रहे हैं कि एक उन्नति की राह में, एक प्रगति की राह में, तो वहां पर यह उद्योग को आगे बढ़ाने में स्किल्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा सकता है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील दुग्गल जी का। आज के इस कार्यक्रम में एक बात तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता लग रही है कि जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो बहुमुखी है और किस प्रकार से राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का औद्योगिक स्तर इस महत्वपूर्ण तत्व को कि चांदी जो सिल्वर है वो देश के विकास में, रोजगार में एक नई कड़ी प्रस्तुत कर सकता है। तो आइए इसी टिप्पणी पर कि किस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं सिल्वर सिंपली एन्चेंटिंग, जी हाँ, विकास के नए आयाम को, विकास के स्तर को बहुआयामीय बनाते हुए चांदी का, सिल्वर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसी बात पर आज हम आपके बीच एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन द्वारा एक कुछ प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी टेक्निकल टीम से कि इस समय कार्यक्रम में वीडियो को हम अपलोड करेंगे और सिल्वर को जानते हुए कि कितना प्रमुख योगदान कर सकता है यह हमारे देश व राज्य के विकास में। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, सिल्वर सिंपली एन्चेंटिंग। सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। बात चाहे शुभ अवसर की हो या रोजमर्रा की, परंपरा की हो या फैशन की, चांदी हमारे जीवन का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसे शुभ तो मानते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चांदी को लाभदायक धातु माना गया है।
बात की जाए तो आयुर्वेद में चांदी हमारे लिए गुणकारी मानी गई है और इसीलिए चांदी को घर घर में लोग निवेश की तरह त्योहारों पर खरीदते हैं। देश विदेशों की सरकार, ज्यादातर बड़े कारोबारी भी चांदी में निवेश करते हैं। चांदी के बने खूबसूरत भारतीय आभूषण और कारीगरी दुनिया में मशहूर है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्थान का, जहां की कला और कारीगरी एक खास मुकाम रखती है। ये राजस्थान की विरासत है जो आज भी राज्य की उन्नति का एक चमकता चेहरा है और इसे जेनी चौधरी जैसी आत्मनिर्भर महिला उद्यमी देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। इन्होंने अपने घर से चांदी से बने गहनों के एक कारोबार की शुरुआत की। चोखार का सफर एकमात्र उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है, आधुनिक भारतीय युवा को पारंपरिक आभूषण से जोड़ना। हम 92.5% सिल्वर के गहने बनाते व क्यूरेट करते हैं जो हमारी सदियों पुरानी कारीगरी और इतिहास को दर्शाता है। यहाँ डिज़ाइन किए गए सभी गहनों में एक समृद्ध विरासत की खुशबू है। सिल्वर ज्वेलरी के साथ काम करके मुझे अपने व्यवसाय को विकसित करने का और कलाकारों के हुनर को जीवित रखने का अवसर मिल रहा है। अकेले राजस्थान में चांदी और जवाहरात के कारोबार से 46 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। इनमें नक्काशी, गहने और जरी के कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, चांदी के बर्तन, कलाकृति बनाने और बेचने वाले व्यापारी हैं। इनके अलावा बिजली के उपकरण जैसे व्यवसाय भी शामिल हैं। पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है राजस्थान और यहाँ चांदी रोजगार ही नहीं, राज्य के गौरव का प्रतीक भी है। सोने, चांदी और जवाहरात का कारोबार भारत की सकल घरेलू उत्पाद का 7% हिस्सा है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर निर्यात की बात करें तो 2019 में 5,845 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020 में दुगना से ज्यादा लगभग 12,000 करोड़ रुपए हुआ है। भारत में चांदी का बाजार कुछ इस तरह बंटा है, जहां चांदी के गहने 34% है, चांदी के बर्तन और सामान 22%, चांदी में निवेश 25% है और 19% हिस्सा है उद्योग का, जिसमें सोलर पैनल, बिजली के उपकरण, सिल्वर पेस्ट जैसे व्यापार हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 2020 में चांदी की खपत 6,600 मैट्रिक टन थी। वहीं देश में चांदी का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2020 में केवल 610 मैट्रिक ही हुआ था और बाकी 5,990 मैट्रिक टन चांदी हमें चीन, हांगकांग, यूरोप, रूस और अमेरिका आदि देशों से आयात कर पूरी करनी पड़ी, जिसकी कीमत वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 17,022 करोड़ रुपए थी, जो डॉलर को मजबूत और रुपए को कमजोर करता है। सोचिए, यदि इसका निर्माण भारत में ही हो तो हम विदेशी मुद्रा बचाने के साथ ही रोजगार के अवसर भी दे सकेंगे। इसके अलावा चांदी आमतौर पर कई जगह उपयोग में ली जाती है, जैसे हमारे मोबाइल फोन में और बिजली के उपकरणों में। चांदी के सॉल्ट का उपयोग प्रयोगशालाओं और दवाइयों में भी होता है। हमारे देश के कई प्रतिष्ठित IIT और IISc के प्रोफेसर एवं विद्यार्थी चांदी से जुड़े अनुसंधान में कार्यरत हैं। अभी हाल ही में नैनो सिल्वर डिस्कवर किया गया है और इस नैनो सिल्वर के बहुत ज़्यादा मेडिकल इम्प्लीकेशंस हैं। नैनो सिल्वर को क्लीन रूम्स, हॉस्पिटल्स के क्लीन रूम्स में यूज़ किया जाता है, जिससे कि सारे फंगल और एंटीमाइक्रोबियल अटैक्स साफ हो जाते हैं। ये भी आज पता चला है कि RNA काइंड ऑफ वायरस जैसे कोरोना वायरस वो भी नैनो सिल्वर कोटिंग से साफ किए जा सकते हैं। आवश्यक है कि चांदी से जुड़े हर पहलू, उत्पादन, खनन, सरकार, उद्योग, कारीगर, व्यवसायी, निवेशी, बैंकों, उपकरणों के उत्पादक और ग्राहक एक मंच पर एक साथ आएं और चांदी के कारोबार को बढ़ाएं। यह एक सशक्त कदम होगा राज्य की विरासत और उसके गौरवपूर्ण इतिहास की धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़े रखने के लिए।
एक सपना जो हकीकत बन सकता है, जहां दुनिया के नक्शे पर राजस्थान चांदी की तरह चमके और दुनिया उसे द लैंड ऑफ सिल्वर की तरह जाने। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये वीडियो ने हमें बताया कि जब हम चांदी की बात करते हैं तो राज्य के गौरव से लेकर निवेश, आभूषण, निर्यात, हर स्तर पर चांदी बहुमुखी है। साथियों, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समय हमारे बीच एक ऐसे खास शख्सियत हैं जिनको परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों के साथ मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। वेदांता ग्रुप जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, जिसका मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि किस प्रकार से कमोडिटी के क्षेत्र में देश की शान को और आगे बढ़ाया जाए। एक जायंट प्लेयर के रूप में आपका प्रयास रहता है कि हर तरह से आयात पर निर्भरता कम हो और साथ साथ हर लगन के साथ देश में, राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी उपस्थित हमारे साथ साथी, आज की इस वेबिनार में इस समय मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, कि सर आज के कार्यक्रम में अपने विचारों से आप हमें मार्गदर्शन करें। मैं सर को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप। अनिल जी प्लीज। बहुत खुशी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे नीति आयोग के सीईओ हमारे कांत साहब, अमिताभ कांत जी, हमारे सुनील दुग्गल जी, सीईओ हिंदुस्तान जिंक के अरुण मिश्रा, और आज के दिन हजारों लोग आना चाहते थे इस वेबिनार में। हमने 300 की रिस्ट्रिक्शन रखी थी। एंटरप्रेन्योर, ज्वेलरी वाले, फैक्ट्री वाले सब आए हैं, उनका बहुत स्वागत। पूरी दुनिया से लोग बार बार खबर कर रहे थे कि हमें भी भाग लेना है। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट रखा, टाइम कम है, 10 लोगों को बुलाया है। आगे आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में मशीन मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजी सप्लायर, ये सब आना चाहते हैं, इनको हम लेके आएंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। जब भी मैं अशोक जी से मिलता हूँ, अलग से अमिताभ कांत जी से भी मिलता हूँ, उन दोनों की हरदम यही मन में रहती है कि हम छोटी और मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें। अशोक जी का तो ज्वलंत रहता है, जब भी बात किया कि भाई हम अपने छोटे जो उद्यमी हैं वो लोग कारोबार कैसे कर सकते हैं। ये सोच के चांदी एक बहुत सामने आई, और आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ न कुछ प्रभु कृपा ही रहती है जो ऐसा होता है। हिंदुस्तान जिंक ने कभी चांदी बनाई नहीं, न कभी वो चांदी की माइन थी, लेकिन हमारे जो इतने सक्षम लोग हैं, ये आज सालों सालों से लगे हुए थे, आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा चांदी इस कंपनी में बना रहे हैं। अशोक जी का हरदम रहता था कि हमारे यहाँ जो माल बनता है उसकी खपत हमारे राज्य में हो सकती है क्या। तो उसको देखकर हमें लगा कि हम दुनिया के जो टेक्नोलॉजी सप्लायर हैं और जो मशीन सप्लायर हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम यहाँ के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो IIM जो हैं, बिजनेस कॉलेज हैं, उनके पास जाना चाह रहे हैं, और उनके पास जाएंगे ये वीडियो लेकर कि आप जॉब मत देखो, आप जॉब क्रिएट करो। ये चांदी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि 5 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक में आराम से लग सकता है। आप आपके घर के पीछे आउट हाउस में भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, एक इंडस्ट्री एरिया में भी आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। आज के दिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, जो भी बिजली का उत्पादन है, कॉन्ट्रैक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, हिंदुस्तान में 10% की खपत होती है। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है। हमारा सपना है
कि राजस्थान भी एक इस दिशा में पहल करे। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अमिताभ कांत जी से, वो पर्सनली उन्होंने हाँ की कि मैं आऊंगा राजस्थान से, मैं भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी हमसे मदद बनेगी वो हम करेंगे। हमारे दूसरे बहुत सारे बैंकर्स भी इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं, उनकी बहुत इच्छा है कि इसको हम फाइनेंस करें, चाहे मशीनों का फाइनेंस हो, चाहे ट्रेड का फाइनेंस हो। बैंक वाले भी बहुत कीन है कि इसमें हम फाइनेंस करें। तो इसको देखते हुए आने वाले दिनों में चांदी की महत्ता बहुत है। इसके अलावा आज के दिन हम 1 किलो की चांदी बनाते हैं। आज सोने की जगह लोग चांदी रखना पसंद करते हैं। ये एक बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। अगर किसी को बचत करनी है तो चांदी भी एक विशेष चीज हो सकती है। मैंने हरदम कहा है अशोक जी को कि जैसे पंजाब पूरे हिंदुस्तान को अनाज खिलाता है, एक राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को नेचुरल रिसोर्स दे सकता है, इतनी क्षमता है। आप ये एक्सप्लोरेशन जो है इसको फ्री कर दीजिए। जिस हिसाब से काम चल रहा है, मैं अमिताभ कांत जी बैठे हुए हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लोरेशन जितना चाहें। आज एक्सप्लोरेशन करने के लिए इतनी दिक्कतें हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत इतने कानून है। ये आज सब्जेक्ट नहीं है बात करने का, लेकिन मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में एक्सप्लोरेशन को फ्री किया गया तो तेल के क्षेत्र में, चांदी के क्षेत्र में, जिंक के क्षेत्र में, लेड में, पत्थर में इतनी ज्यादा यहाँ पोटेंशियल है, तो वो बहुत बड़ा काम आगे बढ़ सकता है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं जितने भी हमारे व्यापारी एंटरप्रेन्योर, आज हमारे ऑनलाइन 1000 एंटरप्रेन्योर जमा हुए हैं, 300 फॉरेन के लोग इस सेमिनार को देख रहे हैं। सबको बहुत बधाई देता हूं। हम ये बता सकते हैं कि ये राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां की मैं सारे ऑफिसर को बहुत ज्यादा बधाई देता हूं। यहाँ काम रुकता नहीं है। मेरा एक छोटा सा एक इंसिडेंस बताना चाहता हूं एंटरप्रेन्योर को। हमारे एक पहचान वाले थे, हमारा भतीजा था, वो एक छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहता था। 15 दिन के अंदर में रिको ने उसको लैंड दे दिया। कहीं भी 6 महीने से ज्यादा लगता है, 15 दिन में जगह दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजस्थान इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप इसको आगे बढ़ के देखें। चांदी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर हैज बीन वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जब हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, आदरणीय अमिताभ कांत जी का योगदान तारीफ काबिल है। He has won awards at national levels and has also been the face of several development avenues of the nation. Author of the important work Branding India, an Incredible Story. इन्हीं बातों के साथ मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी, सीईओ नीति आयोग, के आज के इस कार्यक्रम में अपने विचारों से वो हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। Requesting आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी for remarks from his side to guide us on way forward to explore opportunities in the realm of silver sector. अमिताभ सर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, आदरणीय श्री सुनील दुग्गल, सीईओ वेदांता ग्रुप, आदरणीय श्री अरुण मिश्रा, सीईओ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। पहले तो मैं वेदांता ग्रुप और हिंदुस्तान जिंक को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने चांदी पर इतना बड़ा एक वेबिनार किया। और खासकर इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान जी को आमंत्रित किया, क्योंकि उनकी डायनेमिक लीडरशिप में हम राजस्थान को दुनिया का नंबर 1 स्टेट चांदी के क्षेत्र में बनाना चाहेंगे और बहुत ही पोटेंशियल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की डायनेमिक लीडरशिप में हम बहुत कार्यक्रम और बहुत नई टेक्नोलॉजी राजस्थान में ला सकेंगे। ये चांदी एक ऐसी चीज है जो राजस्थान में घर घर में फैली है और राजस्थान के हृदय और दिल में समाई हुई है। और इसलिए
ये हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है उसमें राजस्थान के साथ बिल्कुल मिली हुई है। इसलिए मेरे विचार से तो जब ये कोविड-19 की महामारी खत्म होती है तो इसके बाद हम लोग को एक बहुत बड़ी, हम लोग वेदांता ग्रुप के साथ नीति आयोग मिलकर काम करना चाहेगा और ये राजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हम लोग को करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको हम वहां के मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक एक वर्कर के पास इसको पहुंचा सकें और इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट राजस्थान में बढ़ा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि सिल्वर जो रहा है हिंदुस्तान के ट्रेडिशन का एक बहुत ही बड़ा रोल इसने प्ले किया है और परंपरागत समय से सिल्वर एक करेंसी की तरह इस्तेमाल किया गया। और हम जब देखते हैं तो हिंदुस्तान में अरिकामेडू तमिलनाडु में सिल्वर कॉइन्स पाए गए थे और वो 1st सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। तो जो पूरा हिस्टोरिकल हमारा जो वाणिज्य ट्रेड था, ट्रेड सारा का सारा हिंदुस्तान और रोम के बीच में सारा चांदी में ही किया जाता था। और ये दिखाता है कि चांदी ने कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है हिंदुस्तान में 1st सेंचुरी से लेकर अभी तक। और इस समय हिंदुस्तान से चांदी का सबसे बड़ा दुनिया में कंज्यूमर है और ये इसके लिए राजस्थान को खास धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिल्वर जो चांदी की एप्लीकेशंस हैं, 2 महत्वपूर्ण रोल करता है ये। एक तो पर्सनल कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल यूज। और पर्सनल कंजम्पशन जो आम आदमियों की जिंदगी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज्वेलरी, सिल्वरवेयर और फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये पर्सनल कंजम्पशन करीब 75% जो हिंदुस्तान की चांदी की जो डिमांड है वो 75% इसमें मीट की जाती है। और जो व्यवसाय क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में जो ऑफटेक किया जाता है वो केवल 25% सिल्वर डिमांड की जाती है। पर जो पर्सनल कंजम्पशन की जो डिमांड है पूरी की पूरी राजस्थान के कारीगर, राजस्थान के वर्कर्स, वहां के मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनकी वजह से बढ़ी है और उनकी वजह से सारे हिंदुस्तान और विदेश में फैली हुई है। तो राजस्थान का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है और आगे चल के ये बहुत बढ़ेगी। आज का जो चांदी है वो बैटरी, अलॉय, हमारे दांतों में, ग्लास कोटिंग में, एलईडी चिप्स में, दवाइयों में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, फोटोग्राफी में, फोटोवोल्टिक एनर्जी में, आरएफआईडी चिप में, सेमीकंडक्टर हो, टच स्क्रीन हो, वाटर प्यूरिफिकेशन हो, वुड प्रिजर्वेटिव हो और कई व्यवसाय क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। और ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि आगे चल के व्यवसाय क्षेत्र में इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी और आगे चल के जो डिमांड बढ़ेगी व्यवसाय क्षेत्र में, इंडिया का जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड इन सारे क्षेत्रों में बढ़ती चलेगी। अभी हमारे फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिल्वर की डिमांड करीब 6,600 टन थी और 10% ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन 610 टन और 90% करीब इंपोर्ट होता है। तो इसलिए करीब डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 10% और 90% इंपोर्ट। और हर साल हिंदुस्तान करीब 6,000 मेट्रिक टन सिल्वर इंपोर्ट करता है। हिंदुस्तान जिंक जो राजस्थान में है उसने बहुत नई टेक्नोलॉजी उपयोग की, नया इनोवेशन उपयोग किया और वो सिल्वर प्रोडक्शन बढ़ा सका है इस टेक्नोलॉजी के उपयोग करने की वजह से। और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो करीब 800 टन एनुअली ले जाएगा इस प्रोडक्शन को और बढ़ाता चला जाएगा। और उनका जो लक्ष्य है कि आगे चल के इसको डबल करेंगे और आगे चल के दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इंडिया को बनाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है समझना कि जब 2002 में हिंदुस्तान जिंक का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो हिंदुस्तान जिंक उस समय केवल 50 टन प्रोड्यूस करती थी और अब ये ले जाकर उसको 800 मेट्रिक टन की बात, 8,000 मेट्रिक टन तक ले गए, 800 टन तक ले गए हैं। तो इसलिए कितना बढ़ावा दिया है हिंदुस्तान जिंक ने, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनकी जो हार्ड वर्क की वजह से इसको सिल्वर क्षेत्र में हम आगे ले जा चुके हैं। और माइनिंग की वजह से
हम अपना डोमेस्टिक सिल्वर प्रोडक्शन बहुत बढ़ा सकते हैं। हम लोग की जो नीति आयोग में एनालिसिस हुई है, जो रिसर्च वर्क हुआ है, उससे हमें लगता है कि ये इंडिया के पास बहुत रिजर्व है, बहुत रिसोर्सेज है और करीब 30,000 मेट्रिक टन ऑफ सिल्वर है यहाँ, और जिसमें से 30,000 मेट्रिक टन में से 98% राजस्थान में है, और 98% राजस्थान में और केवल 2% आंध्र और मध्य प्रदेश में है। मतलब राजस्थान तो सबसे रईस देश हिंदुस्तान का निकल सकता है। हिंदुस्तान जिंक इसमें पूरा दम लगाए और हम सब लोग मिलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब के साथ काम करेंगे तो राजस्थान दुनिया का सबसे एक प्रोड्यूसर बनेगा सिल्वर चांदी के क्षेत्र में, और हम लोग इसमें पूरी मेहनत करेंगे। ये इसके लिए जो भी पॉलिसी होगी, जो भी इंपोर्ट रोकना पड़ेगा, और जो 20,000 करोड़ हम इंपोर्ट में लगाते हैं उसको रोक के जो भी राजस्थान में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। नीति आयोग राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगा इस कार्यक्रम में, और जो भी गवर्नमेंट इसमें प्रोडक्शन व्यवसाय क्षेत्र में जो भी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल, ई व्हीकल, इन सबको फिलिप देगा कि सिल्वर को आगे ले जाएगा, कि सिल्वर इंडस्ट्री आगे बढ़े। मैं खासकर ये मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत ही अनोखी क्राफ्टमैनशिप है। ऐसी क्राफ्टमैनशिप दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, और वहां के जो कारीगर हैं उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है, और इसी वजह से सिल्वर ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो बहुत बड़ा है। करीब 2019 में 832 मिलियन था, वो बढ़ के 2020 में 1.7 बिलियन, दुगना से भी ज्यादा बढ़ा है। और ये इसका सारा क्रेडिट और इसकी सारी तारीफी जाती है वहां के वर्कमैनशिप को। तो ये जो आर्टिस्ट्री है, जो क्राफ्टमैनशिप है, जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म राजस्थान के, और जो फिलिग्री वर्क है, ये सारा राजस्थान की वजह से देश आगे बढ़ा है चांदी के क्षेत्र में, और एक्सक्विजिट सिल्वरवेयर कलेक्शन जो बढ़े हैं और जो दुनिया भर में डिमांड किए जा रहे हैं, ये राजस्थान की वजह से। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं वेदांता ग्रुप को, हिंदुस्तान जिंक को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आगे गए हैं और जिन्होंने भारत को चांदी के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर लाए हैं। और हम इनके साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलके राजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप करेंगे और राजस्थान को दुनिया का नंबर 1 स्टेट बनाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट रिस्पेक्टेड आदरणीय अमिताभ कांत जी का। किस प्रकार से आपने हमें बताया कि चांदी का के क्षेत्र में राजस्थान को देखते हुए कितना ज्यादा हमारे सामने मार्गदर्शन दिया है आपने, कि किस तरह हमारे लिए जरूरी है कि एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ावा दें और जो आर्टिस्ट है, आर्टिसन है, उनको हम और प्रोत्साहन दें। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित वर्चुअल मीडियम से आज के इस वेबिनार की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए देश व विदेश से कई एक्सपर्ट्स, डेलीगेट्स, मीडिया के सभी सदस्यों को मैं बताना चाहती हूं कि वो लम्हा आ गया है जिसका हम सभी कर रहे हैं इंतजार। इस समय हमारे बीच देश सेवक जो विद्यार्थी जीवन से ही गांधीवादी मूल्यों के साथ सदा समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। आपने सदा केंद्रीय मंत्री के रूप में, कई बार प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास को, देश के कल्याण को सदा आगे रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस उत्सव पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बात है कि आज अनिल जी हमारे बीच कुछ शब्द कहना चाहेंगे। मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगी, 1 मिनट का समय हम करेंगे। जी अनिल जी यदि कुछ कहना चाहें। 2 इतने बड़े लोग हैं हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्सप्लोरेशन को फ्री कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसके लिए क्या करना है आप बताइए। एक्सप्लोरेशन के लिए खाली एनवायरमेंट लाइसेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना करेंगे राजस्थान की प्रगति इतनी होगी। ये मैं सोचा आपको इस बीच में मैं दोबारा एक बार रिमाइंड कर दूं, मेरे को मौका मिला है तो मैं आपको ये एक्सप्लोरेशन
आपको लाइसेंस फ्री करना ही पड़ेगा, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, अपना पैसा लगाना चाहता है, तो अशोक गहलोत जी, सब लोग आपके। हाँ बोले। अनिल अग्रवाल साहब, अमिताभ कांत जी, मिस्टर माइकल, सुनील दुग्गल जी, अरुण मिश्रा जी, मुझे खुशी है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट लेकर के राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले अनिल अग्रवाल जी को और उनके ग्रुप के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब अनिल अग्रवाल जी ने दिल खोल के बातें रखी है और दिल की भावना बताई है। अमिताभ कांत जी को मैं जानता हूँ जब से ये DMIC के CMD थे, तब भी इन्होंने बहुत ही डायनेमिक तरीके से उस काम को आगे बढ़ाया था। अब ये नीति आयोग में हैं, इनके विचार भी हमने सुने, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप दोनों और मिस्टर दुग्गल जी भी सब ने जो भावना प्रकट करी है, जो हमारी अपेक्षा आप लोगों से थी, वो आपने बगैर मेरे कहे हुए ही आप लोगों ने सामने रखा, पूरे देश और दुनिया के सामने। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और जो अभी अमिताभ कांत जी बोल रहे थे कि कोविड के बाद में उनका सपना क्या राजस्थान के लिए, कोई भावना वही थी जो आपकी भावना अग्रवाल साहब, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे सरकार बनने के बाद में, तब भी आपने एक्सप्लोरेशन की बात करी थी कि इतना राजस्थान में खनिज संपदा छिपी हुई है, उनको कैसे उपयोग में लें, कैसे एक्सप्लोरेशन करें, ये आपने मुझे उस वक्त भी कहा था। राजस्थान में सोना भी है, चांदी भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, सैंड स्टोन भी है, क्या नहीं है यहाँ पर, लाइम स्टोन भी है, सीमेंट फैक्ट्री लगती रहती है। पोटेशियम हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर है, जिसकी खोज करने की आवश्यकता है। तो आपकी जो सोच है उसको मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ शुरू से ही, कि राजस्थान में खनिज संपदा के अथाह भंडार है और उसमें चांदी भी एक है। इसलिए इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान वो राज्य बन सकता है देश का, जिसके लिए आज हम कहते हैं कि राजस्थान में हमें समस्या रहती है सभी तरह से। कोविड आ गए और समस्या में गिर गए हम लोग, और ये एक ऐसा सेक्टर है खनिज संपदा का, उसको लेके हम लोग जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आज जो एक्सपोर्ट में पहल जाता है, इंपोर्ट में पहल जो जाता देश का, वो बच सकता है। आज जो फिगर दिए गए कि शुरू में 7,000 टन के आसपास मांग है देश के अंदर चांदी की, और 90% आयात करना पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आती होगी। उसको रोकने के विचार प्रकट किए गए। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार भी आपको विश्वास दिलाती है कि तमाम तरीके से पिछले 10-15 सालों के अंदर भी जो तेल की खोज हो गई, जिसको आप देख रहे हैं कि इनके माध्यम से गैस निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कुछ निकल भी लगने लग गई है, गैस भी, रिफाइनरी आने लग गई है, काम चल रहा है उसका भी। एक्सप्लोरेशन आप और आगे करने जा रहे हैं, ब्लॉक्स मिले आपको भी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है और राजस्थान की जो भावना आपके दिल में है, मैं चाहूँगा कि उसके लिए साथ बैठ करके हम लोग आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही मैंने देखा कि तमाम काम की बातें बार बार होती हैं, परंतु खनिज संपदा को वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसकी खोज हो, कैसे माइनिंग उसकी हो, कैसे टेक्नोलॉजी काम ली जाए, कैसे रिसर्च हो, कैसे डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए, और कैसे राजस्व की बढ़ोतरी हो, रेवेन्यू बढ़े, इन तमाम कामों के संचालन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए आपको हमें खुशी होगी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया अभी हाल ही के अंदर। उससे आप सोच सकते हैं कि ये ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से हम लोग ढंग से फंडिंग करके जो जो भावना हमने प्रकट करी है उसको हम आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, मेरा मानना है।
यहाँ पर जयपुर में JMN ज्वेलरी इंस्टीट्यूट भी बनी हुई है। रिको के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है। JMN ज्वेलरी की कई वहाँ लगी हुई है, सिल्वर के लिए काफ़ी काम वहाँ होता है। और यहाँ पर SEZ में तो JMN ज्वेलरी के 100% एक्सपोर्ट भी होता है। जयपुर से मिस्टर राजीव अरोड़ा मुझे भी संदेश भेजे थे, वो अभी जुड़े हुए हैं, जो आम्रपाली के ऑनर है। उन्होंने कहा कि चांदी के निर्यात में जयपुर अव्वल है और 50% निर्यात तो जयपुर से होता है। तो ऑर्नामेंट के रूप में चांदी के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं देश से, पर बाकी जो चांदी का उपयोग जो है, जैसा भी आप लोगों ने बताया, अमिताभ जी ने और आपने, अमिताभ जी तो बहुत ही जानकार है, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी उनकी है, बहुत अनुभवी रखते हैं वो, कि किस प्रकार गांव-गांव में जो हमारी संस्कृति संस्कार रहे हैं सदियों से, उसमें अग्रवाल साहब आप तो जानते हैं अनिल जी की किस प्रकार हर घर के अंदर सोना चांदी का गरीब आदमी चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं मेरी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से घर घर के अंदर, मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर, राजस्थान के तो गांव-गांव में ही है, पूरे मुल्क में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला हो, वहाँ पे भी हर मुल्क के हर गांव के अंदर गरीब आदमी चाहता है मैं कुछ न कुछ अपने पास रखूँ। चांदी के बर्तन हो, चांदी के सिक्के हो, चांदी के दीपावली में खरीदारी हो, या चांदी के जो हम लोग बनाते हैं आइटम भगवान के लिए, तमाम चीज़ें चांदी की बनती है। तो इतना बड़ा स्कोप है। मेरा एक सुझाव रहेगा आपको, आप हिंदुस्तान जिंक की तरफ से, अगर अभी हमने स्किल डेवलपमेंट यहाँ यूनिवर्सिटी खोली है, विश्वविद्यालय चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ जिलों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि रोजगार का जो आप समझते हो चुनौती बड़ी है देश के सामने भी, प्रदेश के सामने भी, कोरोना के कारण और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने तय किया कि नौजवानों को हम लोग किस प्रकार ट्रेनिंग दें उनको स्किल डेवलपमेंट में, जिससे वो अपना काम कर सके, इसका स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिंक खुद आगे आए और ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम भी कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से बात करके खुल सकते हैं, तो बड़े रूप में आप रोजगार देने में सक्षम हो सकते हो, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमेशा आपने अपना फर्ज निभाया है। मैंने देखा है जब कभी CSR फंड की बात, खर्च करने की बात हो, तो आपने चाहे वो उदयपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ हो, जहाँ आपको कहा गया उसको आपने बाकायदा अपने CSR फंड से आपने उसको अंजाम दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर भी स्कोप बहुत बड़ा है, जितना हम लोग बात करें उससे ही बड़ा स्कोप है। और वो तभी हो सकता है जब उसके लिए हमारी जो सोच बनी हुई है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा आप हमें सुझाव देंगे, आपने अभी सुझाव दिया बिना लाइसेंस के ही एक्सप्लोर होना चाहिए, ये बहुत आपका सुझाव पहले मुझे दिया गया था। क्या इसकी संभावना हो सकती है भारत सरकार से या राज्य सरकार से, उसको हम लोग परीक्षण करवाते हैं, क्योंकि आपका बहुत ही ये मैं समझ रिवोल्यूशनरी ये सुझाव है कि एक्सप्लोरेशन कोई भी करे। और मेरा अनुभव कहता है कि जो पोटाश का जो भंडार राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ बीकानेर की तरफ है, और मुझे जानकारी में आया कि पूरे देश के अंदर पोटाश कहीं अगर है तो पूरा राजस्थान के अंदर ही है। अभी पूरा फर्टिलाइजर के लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि उसमें हम लोगों ने ट्राई किया पहले कि किस प्रकार से एक्सप्लोरेशन हो, और अल्टीमेटली हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जो फर्म आई थी वापस चली गई। तो कुछ काम तो चैलेंज वाले हैं जो हर एक के बस की बात भी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के, अमिताभ जी के भी, आपके भी हम लोग अनुभव काम लें। और कोविड के बाद में एक, अभी आप अमिताभ जी कह रहे थे कि एक बड़ी सेमिनार जयपुर में करना चाहेंगे राजस्थान के अंदर, हम वेलकम करेंगे। नीति आयोग और राजस्थान सरकार मिलकर कर सकती है, हिंदुस्तान जिंक पार्टनर बन सकता है उसका। पर किस रूप में हम लोग इन बातों में लेके आगे बढ़ सकें, इसमें हमारी पूरी रुचि रहेगी और पूरी मंशा रहेगी और पूरी तरह समर्पित है इस काम के लिए। क्योंकि ये राजस्थान हित की बात आपने कही है, किस प्रकार राजस्थान में आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो, खनिज संपदा का दोहन हो, पूरे देश को लाभ मिले और हमारी विदेशी मुद्रा बचे।
इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है। तो राजस्थान को भी लाभ है, पूरे देश को लाभ है खनिज संपदा के साइंटिफिक तरीके से दोहन का। हमें उम्मीद है कि इसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और बाकी जो उद्देश्य रखा गया इस सेमिनार का, वो बहुत ही शानदार उद्देश्य रखा गया, और मैं समझता हूँ कि इससे पूरे उद्यमी, चांदी निर्माता, नीति निर्माता, उपकरण बनाने वाले, फाइनेंसर, और इससे आपने बताया मेडिसिन की बात भी की गई, इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, और तो और इंडस्ट्री में काम आता है। अब हमारे यहाँ पर सोलर का जो काम है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रास्ता में शुरू हो रहा है, सोलर प्लांट लगने का, तो उस पर भी मैं समझता हूँ कि बड़ा जम मिलेगा। तो चारों ओर से हम देखें, राजस्थान तो पहले राजस्थान था वो स्थिति नहीं रही है। अब यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आए हैं इंडस्ट्री के। यहाँ पर आकाश के पर्दे थे, अब वो स्थिति बदली है, मानसून का मिजाज बदला है राजस्थान के लिए। अब मानसून इस बार भी बहुत शानदार आया राजस्थान के अंदर। यहाँ पर हरियाली दिखती है, पहले की तरह खाली डेजर्ट नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट भी काफ़ी अधिक हुए हैं। यहाँ पर IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT आ गई, बड़ी बड़ी संस्थान आ गई, एम्स आ गया। तो राजस्थान में बड़ी संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान भी आने लग गई है, और लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले भी आने लग जाएंगे, बशर्ते कि हम लोग जो हमारी सोच है उसको हम आगे बढ़ाने में पूरी तरह कामयाब हो। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका आज का जो पहल है, और आपने भी कहा था कि तो पहल एक छोटे रूप में की गई है, आने वाले वक्त में आप चाहेंगे और ज़्यादा जो लोग चाहते थे जुड़ना वेबिनार से, अगली बार आप और लोगों को जोड़ करके बड़े रूप में इस काम को, वेबिनार को आयोजित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की सेमिनार, कोविड नहीं होगा तो वेबिनार की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग फिजिकली मिल लेंगे, और इस प्रकार की एक्टिविटी अगर जयपुर में होगी तो बड़े रूप में मैं समझता हूँ कि हम लोग करने में कामयाब होंगे। लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबको रियाज किया, अनिल अग्रवाल जी। और मैंने सुना कभी आप बॉम्बे में हैं, लंदन गए नहीं हैं, तो अच्छी बात है कि आपका जो ये कोविड ने जो है एक मौका दे दिया आपको हिंदुस्तान में रहने का। हिंदुस्तान के जो स्थिति हैं, इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, वो हम सबके लिए चिंताजनक स्थिति है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो आम नागरिक हो। हम सब मिलके कैसे आने वाले वक्त में राष्ट्र के हित में काम कर सकें, गाड़ी पट्टी पे आए, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की, रेवेन्यू वहाँ पर बढ़े, और कोरोना ने जो लॉकडाउन किया उसके बाद में और ज़्यादा स्थिति खराब हुई है, उसको कैसे वापस संभालें, जिससे कि तमाम उद्योग जो है, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, सभी वापस उस रूप में आए जो पहले रूप था, जिससे कि केंद्र सरकार की रेवेन्यू बढ़े और राज्यों को भी उसकी इमदाद मिले। इस सोच के साथ में मैं समझता हूँ कि आज आपने एक शुरुआत करी है, मुझे खुशी है कि हम सब उसमें जुड़ सके। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि किस प्रकार से आपने बताया कि राजस्थान सरकार सक्रिय रूप से आदरणीय अनिल अग्रवाल जी का जो विचार है कि चांदी के क्षेत्र से राज्य सरकार और राष्ट्र का कल्याण दोनों स्तर से दोनों इस विचार को आगे लेकर जाएंगे। एक बार फिर आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपका आभार। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के इस वेबिनार में आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज के इस वेबिनार की श्रृंखला में अब मैं आदरणीय श्री अरुण मिश्रा जी, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव हेतु कुछ शब्द हमारे बीच रखें। रिक्वेस्टिंग आदरणीय अरुण मिश्रा जी, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, टू टेंडर दी वोट ऑफ थैंक्स। अरुण जी प्लीज। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमने हिंदुस्तान जिंक से करीब नजदीकी से देखा आपने किस तरह कोरोना के साथ जूझते हुए हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर एक जगह में शासन के थ्रू आपने इस कोरोना के साथ
काफी अच्छा से इसको हमने रोका, जिसके चलते कि हमारी इंडस्ट्री जो है, स्पेशली हिंदुस्तान जिंक, बड़ा जल्दी अपना ऑपरेशन शुरू कर पाया और वो बहुत जल्दी पटरी पर आ पाया। इनफैक्ट आपने हर एक हफ्ता में एक एक गुटों के साथ आपने संवाद करते थे। हमने उस तरह एक दो संवाद में आपके साथ भाग लिया, जिसमें कि अपने सबका सुझाव ले रहे थे किस तरह हम लोग इस इकोनॉमी को पटरी पे लाए और किस तरह इसका रोकथाम करें। आपने काफी सारे अच्छे कुछ पॉइंटर्स जो दिए हैं, जैसे कि पोटस का एक्सप्लोरेशन, जैसे कि ट्रेनिंग का बात किए हैं, और जैसे कि आपने बात की है कि और बड़ा सेमिनार जयपुर में नीति आयोग और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर करने का जरूर हिंदुस्तान जिंक की तरफ से हमारे प्रॉमिस रहा कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बोले हैं कि हमने सारे लोगों को एक छत के नीचे लाए हैं, अगर उनमें से किसी भी व्यवसाय की कोई रिलेशन बन पाएगा जिसमें हिंदुस्तान जिंक कुछ कर सकेगा तो जरूर करेंगे, हमारा वादा है। हम जरूर आके आपके साथ और मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंक का आने वाले दिनों में कैसे और बिजनेस प्रसार हो, कैसे हम और लोगों के रोजगार के संस्थान कर पाए, कैसे हम भारतवर्ष की इकोनॉमी में अपना योगदान कर पाए, ये हमारा मोटिव रहेगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अमिताभ कांत जी, जरूर हम जब टाटा स्टील में था आपके साथ मिलने गए थे चेयरमैन के आदेश से, केवल इसलिए उन्होंने बोला था कि टाटा स्टील SEZ आप बना रहे नया कंपनी, पहले अमिताभ कांत जी से मिलिए, आपको विजन बनाने में मदद करेंगे। वो 15 मिनट आपने जोश भर के हमको छोड़े थे उस दिन, वैसा ही जोश आज आपने भर के सब में, सबको लगने लगा कि सिल्वर वेबिनार के थ्रू हम लोग राजस्थान को 1 नंबर का स्टेट बनाएंगे भारतवर्ष का अर्थनीति में बड़ा योगदान के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बिजी समय में भी आप आए। हमारे चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी हर समय हम सबको निरंतर खाली यही बोलते हैं कि बिजनेस नौकरी ये अपने जगह में है, देश सेवा के लिए हम लोग हैं, अपने अपने जगह में रहते हुए कैसे हम लोग इस देश के लिए कुछ कर जाए। और वो बार बार हम लोग को यही सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत करो, फल होगा नहीं होगा वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उसी दिशा में आज की वेबिनार है। हम सब मिलके इसी एक निष्ठता के साथ, इसी एक सत्यता के साथ अगर काम करते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका जो सपना है राजस्थान के लिए वो सपना साकार होगा। हमारे ग्रुप CEO सुनील दुग्गल जी बहुत नजदीक से हमको मेंटर किए हैं हिंदुस्तान जिंक का CEO बनने के लिए। दुग्गल साहब आज जो बात बताए हैं सिल्वर के बारे में, हम उनसे ही सीख रहे हैं इस बिजनेस में कैसे काम किया जाता है। दुग्गल साहब, आपको धन्यवाद आपका विजन शेयर करने के लिए। हमारे साथ इस वेबिनार में सारे जो लोग आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, माइकल हैं हमारे सिल्वर इंस्टीट्यूट से, और हमारे सहयोगी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, उन सबको मेरे तरफ से हमारे वेदांत ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी, आभार आपका आज हमारी पूरी वेबिनार टीम की ओर से कि आपने अपना कीमती समय हमें आज प्रदान किया। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद सदा हर प्रयास के साथ हमारे साथ रहता है। धन्यवाद आदरणीय सुनील दुग्गल जी, वंस अगेन थैंक यू श्री अरुण मिश्रा जी, रुचिका झा मैडम, हर्ष शेट्टी सर एंड स्वयं सौरभ सर। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। नाउ एज वी टेक दी प्रेजेंटेशंस फॉरवर्ड,